قرآن حکیم میں جو سب سے پہلا سورہ نازل ہوا، قرآن حکیم کا جو سب سے پہلا سورہ نازل ہوا وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ رمضان کی 21 تاریخ وہاں جا کر کے جہاں پر وہ تھے وہیں نازل ہوا۔ تو کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، اور ہم نے آدمی کو کیسے بنایا، کیسے پیدا کیا، اس کی بات کو پہلے سمجھیں۔ یعنی آدمی جو ہے اشرف المخلوقات ہے، لیکن آدمی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنا۔ کتنا؟ 18,000۔ یہ سب میٹیریل ہیں، یہ سارے آدمی کے میٹیریلز ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کو ایک سوئی بھی بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو وہ پتھر چاہیے جس میں لوہا پایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو گھلائی کر کے ڈھلائی کر کے اس کو بعد اس کے بنانا پڑے گا۔ ایک سوئی کے لیے بھی آپ کو پہلے تار بنانا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو کٹیا ہوگا، پھر پالش ہوگا، تب جا کے ایک سوئی بنتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں پیدا کیا، اس سے پہلے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ سارے اس کے میٹیریلز ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے جو نازل ہوا وہ اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے آدمی کو کیسے پیدا کیا۔ پڑھ اللہ کے نام لے کر، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ یعنی سب سے پہلے آدمی کو کیسے پیدا کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، نہ کہ یہ بتایا کہ پہلے تم کیسے نماز پڑھے گا، یہ نہیں بتایا۔ آدمی کو ہم نے کیسے پیدا کیا اور اس کے بعد بتایا کہ کیوں پیدا کیا، اس کے بعد بتایا کہ یہ کون اشرف المخلوقات ہے اور کون اشرف المخلوقات نہیں ہے، اور کہیں پر یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، کہیں پر یہ بتایا کہ یہ بہت بڑا کنجوس ہے، کہیں پر یہ بتایا یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ سب کچھ ہی ہوتے ہوئے بھی اشرف المخلوقات آخر ہے کیسے، اس پر غور کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا کہ ہم پہلے جو ہے تمام مخلوقات کو پیدا کر دیے، اس کے بعد سب سے آخر میں آدم کا پتلا بنائے جو 40 سال تک سوکھتا رہا دھوپ میں، ٹھن ٹھن بجتا تھا اور فرشتے اس پر چڑھ کے چلے جاتے اور کہتے تھے کہ یہ ہے کیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قرآن حکیم میں آیا ہے کہ آدم یعنی آدمی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ آخر یہ ہے کیا، یہ مٹی کا پتلا کیوں بنایا۔ تو پوچھتا تھا کہ آخر اس کو کاہل بنایا، ایسے فائدہ کیا ہے۔ ارے ہم لوگ بنا کھائے پیے آپ کا عبادت رات دن کرتے ہیں، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کا، نہ مکان بنانے کا، نہ شادی کرنے کا، کسی طرح کوئی کام نہیں، صرف آپ کا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ تو عبادت کرنے والے کروڑوں کروڑ اللہ کے جب فرشتے ہیں تو پھر آدمی کو بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ اور عبادت ہے کیا، اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے کہ آخر کس عبادت کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے آدمی اور جن کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا، تو کون سے عبادت کے واسطے پیدا کیا، اور وہ عبادت کرنے والے جو اتنے لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ اربوں ارب ہیں فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں، عبادت نہیں کر رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں، اس پر غور ہونا چاہیے۔ بہرحال آئیے اشرف المخلوقات کیسے ہونا ہے اور کون ہے، پہلے اسی پر بات کریں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا اور کہا جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں گا تو تم لوگ سجدے میں گر پڑنا۔ سجدہ کرنا الگ چیز ہے اور گر پڑنا الگ چیز ہے، اس پر غور کیجیے۔ سجدے میں جانا الگ بات ہے، اب کہتا ہے کہ سجدے میں جانا نہیں، گر پڑنا۔ گر پڑنا مانے بے دھڑک گر پڑنا، یعنی جیسے ہی ہم اس میں روح پھونکیں گے تم بے دھڑک گر پڑنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے یہ ہمارا خاص ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، اور جب تک اس میں ہم نہیں پھونکیں گے تب تک سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اپنی روح اس میں پھونکیں گے، اب کیسے پھونکیں گے اور کیا پھونکیں گے اس کو نہیں بتا دیں، پھونکیں گے ترنت سجدے میں گر پڑنا، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اب وہی اشرف المخلوقات کا جو چل رہا ہے جو نسل، اس میں کتنے درندے شامل ہیں، اب کروڑوں کروڑ نہیں اربوں ارب خالی درندے ہو گیا، اشرف المخلوقات کو بالکل غائب کر دیا۔
नजर ही नहीं आता है कि कौन अशरफुल मखलूकात है। आज पूरे दुनिया में आबादी कितना है? 8 अरब के लगभग। कई को आपको मिलेगा अशरफुल मखलूकात? तो जब अशरफुल मखलूकात का तलाश कर रहे हैं आप और खुद आप अशरफुल मखलूकात बनना चाहते हैं तो आपको आदम अलैहिस्सलाम का सजदा करना ही होगा। अगर नहीं करते तो आप नहीं बन सकते, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने करवा दिया कि करना ही पड़ेगा। तो इब्लीस ने कहा कि उतना दिन से तो आप कह रहे थे कि हमरा सजदा करो, आज आप क्यों कह रहे हैं कि इसको करो? कहा हम कहे बतावेंगे? अब बतावेंगे भी तो तुम समझ जाएगा क्या? अरे हम क्यों करवा रहे हैं ये तुम मत पूछो, तुम खाली हमारा हुक्म का तामील करो। बहरहाल अशरफुल मखलूकात होने के लिए आपको भी आदम का सजदा करना ही होगा। लेकिन मसला यह है कि आदम का पहचान आपको नहीं कि आदम है कौन। चूंकि आप हर जितने भी जी होश में है, जो भी देख रहे हैं दरिंदा चरिंदा जो भी आप जो आदमी के शक्ल में आ गया है, जो रियल दरिंदा भी है, उसको आप आदमी समझ रहे हैं क्योंकि वो पैसा है उसके पास, क्योंकि उसके पास 10 बीघा जमीन है, क्योंकि उसके पास नौकरी है या और कुछ भी है। आप उसको समझ रहे हैं कि ये अशरफुल मखलूकात है क्योंकि ये बड़ा पोस्ट पर है और ये ज्यादा पैसा वाला है इसलिए अशरफुल मखलूकात है। हरगिज नहीं, अशरफुल मखलूकात हो नहीं सकता। अशरफुल मखलूकात हैं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अशरफुल मखलूकात हैं गौसुल आजम सकलैन हैं, 12 इमाम हैं, हुजूर सरवर कायनात हैं और तमाम जितने पैगम्बरान हैं, नबी हैं, रसूल हैं, ये सब अशरफुल मखलूकात हैं। अगर आपको अशरफुल मखलूकात बनना है तो आपको मोमिन बनना होगा। मोमिन नहीं बनना है तो कम से कम मुसलमान तो बनना ही होगा। कहिए सुभान अल्लाह। आपको अशरफुल मखलूकात बनने के लिए इल्म की जरूरत होगी और अमल की भी जरूरत होगी। बगैर इल्म अमल के आप अशरफुल मखलूकात नहीं बन सकते। हाँ, दौलतमंद आप बन सकते हैं, कारून की तरह बन सकते हैं, फिरौन की तरह बन सकते हैं, सद्दार की तरह जन्नत भी बनवा सकते हैं, लेकिन घर में जाने का फिर वहाँ आपको उसी वक्त रोक दिया जाएगा। इस जन्नत में भी रोक दिया जाएगा और उस जन्नत में भी रोक दिया जाएगा। लिहाजा अशरफुल मखलूकात बनने का तरीका बेहतरीन इस जमाने में वही है कि जो जहाँ जिस जगह बेहतरीन से जिसको मिल चुका है बेहतरीन राहबर, उस पर वो कायम रहे। अगर नहीं कायम रहता है तो दीन भी उसका बिगड़ेगा, दुनिया भी बिगड़ेगा। इलाही हम डंके की चोट पर कर रहे हैं। हाँ, तो आप कहना यह है कि आप इस बात को समझिए कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात भी कहा है और क्या कहा है? खलक़ल इंसान मिन अजलिन, यानी आदमी को जल्दबाज बनाया गया है कि हमको जल्दी से बना दीजिए औलिया, जल्दी से बना दीजिए गौस कुतुब अब्दाल। अरे इतना जल्दीबाजी करोगे कैसे हो? अरे जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, हालांकि इसको जल्दबाज पैदा किया गया है। दूसरी जगह कहता है या अय्युहल इंसानो मग़र्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ आदमी तुझे किस चीज ने फरेब दिया है अपने कर्म वाले रब से? आखिर तुमको किस चीज ने फरेब दिया है? वही शैतान ने फरेब दिया है। शैतान को गालिब नहीं आने दो वरना तुम फरेब में पड़ जाओगे, यानी तुम जो है गुमराह हो जाओगे। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि यह आदमी जो है सो कंजूस भी है, जाहिल भी है, जल्दबाज भी है, सारी खराबियां इसमें है, उसके बावजूद भी अशरफुल मखलूकात। क्यों? सारी खराबी इसमें, इसके अंदर भरा हुआ कचरा है, नाक में नेटा है, अंदर में पेट में क्या क्या है, कचरा खाली भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सबसे सुपर हैं। क्या आप सबसे सुपर हैं? आप सबसे नीचे हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी फरमाते हैं, और इसके अलावे इमाम हसन जो उस जमाने में हसन यहाँ के थे, हसन बसरी रहमतुल्लाह, उनसे पूछा एक बुजुर्ग ने कि वहां पर बैठा हुआ था एक कुत्ता और बैठे हुए थे हसन बसरी। कहा आप ये बताइए हसन बसरी साहब कि आप बेहतर हैं कि कुत्ता बेहतर है? तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी बख्शिश हो जाती है तो हम बेहतर हैं, लेकिन अगर हमारी बख्शिश नहीं होती है तो कुत्ता से हम नीचे हैं। अब सोच लीजिए कि आप क्या हैं। तो बख्शिश होने का पहले तमन्ना करना चाहिए या उसके लिए क्या करना चाहिए? बख्शिश होने के लिए उपाय करना चाहिए कि नहीं? कि यहाँ खाली करोड़पति बनने का क्रम रहिएगा? नहीं। तो अशरफुल मखलूकात होने के लिए आपको इल्म की जरूरत है और अमल की भी जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी नहीं सोचिए कि हम खुद ही अपने आप अल्लाह को भी पालेंगे, रसूल को भी पालेंगे और जन्नत को भी पालेंगे। ये नहीं हो सकता। सब कुछ आप पा सकते हैं, दौलत पा सकते हैं, शोहरत पा सकते हैं, इज्जत भी पा सकते हैं,
लेकिन आप वो चीज नहीं पा सकते हैं जहाँ हमेशा आपको गुजारना है। उसके लिए आपको कहीं न कहीं झुकना ही पड़ेगा। आदम के सामने, सबके सामने मत झुकिए, लेकिन आदम के सामने आपको झुकना ही पड़ेगा। अब आइए आगे। यहाँ पर आदमी ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ आने के बाद तकलीफें आना शुरू हो जाती हैं, तो तकलीफ किसको नहीं हुआ? हुजूर सवरे कायनात से भी बढ़कर कोई हो सकता है। उनके खंदक, जब जंगे खंदक हो रहा था, खंदक खोदा जा रहा था, तो हवा का जब झोंका आया तो देखा कि 3 पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। हुजूर सवरे कायनात के पेट मुबारक पर 3 पत्थर बंधे हुए थे। क्या उनको खाना नहीं मिल सकता था अल्लाह की तरफ से? पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी? कितना उनको उठाना पड़ा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अब आइए शुरू कीजिए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़कर बाकी जितने हुए हैं सबको शहीद किया गया। क्यों शहीद किया? इसलिए शहीद किया गया कि जब तक शहीद नहीं होगा, चाहे जाहिरी हो या बातनी हो, आप हलाल हो ही नहीं सकते। अब हलाल होना जरूरी है, और हलाल होने के लिए आपको तकलीफ भी उठाना जरूरी है। तो इन लोगों ने तकलीफ उठा करके जो शहादत पाई, तो क्या बेवकूफ थे और हम लोग बहुत अक्लमंद हो गए हैं? हरगिज नहीं। उनके नक्शे कदम पर हमको चलना है। गौस है, कुतुब है, अब्दाल है। अब आदमी है कि भाई गौसुल आजम सकलैन का फोटो है, इनको टांग दिया, तो वहां पर एक लाल जो है फोटो के बगल में लाल कपड़ा टांग दिया और एक मुट्ठा अगरबत्ती जला के वहां घुमा दिया। अरे उनके नक्शे कदम पर चलना है कि उनको खाली पंखा झलना है? एक बुजुर्ग ने फरमाया, अभी हाल में उनसे मुलाकात हुई, तो कहा कि भाई, किसी ने पूछा कि आप क्या करते हैं, तो कहीं इनके वारिस प्रिया का फोटो को पंखा झलते हैं रात भर। उनका बहुत अच्छा करते हैं, इससे बढ़िया और इबादत हो ही नहीं सकता है। यही आपका इबादत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिए, शिर्क से बचिए। बहरहाल आइए, अब हम लोग को अशरफुल मखलूकात पर ही बात होना है, और इस पर जितना देर हो सकेगा इंशाअल्लाह। तो लेकिन थोड़ा सा वक्फा देते हैं और पहले जरा सा चलते हैं नातिया कलाम की तरफ, क्योंकि लंबा चलेगा। आज का जो मौजू है वो है अशरफुल मखलूकात, आदमी कैसे है और क्यों है और कैसे हो सकता है।